أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قالت زينب سلام الله عليها في مجلس الأشقياء: ما رأيت إلا جميلا. صلى الله اللهم صل على محمد. ماہ محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے اور سلسلہ گفتگو جناب زینب اور قرب الہی ہے۔ ہم نے گزشتہ مجالس میں بار بار یہ تاکید کرنے کی کوشش کی کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ قرب خدا تک پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ واجبات کو انجام دیں، محرمات سے پرہیز کریں اور خصوصاً اپنا تزکیہ نفس کریں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس فرش قضا کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی تاکہ انسان یہاں پر آئے اور یہاں بیٹھنے کے بعد اپنے روح کو طیب و طاہر بنائیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کریں۔ میں آج کی مجلس کی ابتدا میں عالم اسلام کے ایک مشہور مفکر آیت اللہ مرحوم شہید مطہری کہ جو دنیا اسلام کے مفکر ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں ایک داستان تحریر کرتے ہیں۔ میں اسی داستان کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ وہ اپنی کتاب میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک شکاری رہا کرتا تھا۔ وہ شکار ہر دن شکار کرنے کے لیے جاتا تھا، طرح طرح کے جانوروں کا شکار کرتا تھا اور انہیں بیچ کر اپنی زندگی چلاتا تھا۔ ایک دن یہ شکاری شکار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے جال میں کچھ طوطے پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ جو جال میں طوطے پھنسے ہوئے ہیں، جال کو ایک درخت پہ لگا دیتا ہے، کچھ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ طوطے ہیں جو جال میں پھنسے ہوئے ہیں، درخت کے اوپر ہیں۔ اب آیت اللہ شہید مطہری تحریر فرماتے ہیں اسی جگہ سے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے۔ ایک جو ہے داستان ہے تاکہ اس سے کوئی درس جو ہے ہم حاصل کر سکیں۔ یہ آدمی ادھر سے گزرتا ہے تو طوطے چلا کے پکارتے ہیں کہ دیکھو شکاری نے ہمیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، تم ہمیں اس کی جال سے آزاد کرا۔ سامنے والے شخص نے کہا میں آزاد کر دوں گا تو کیا ہوگا، کل دوبارہ تم آؤ گے، دوبارہ وہ جال پھینکے گا، آج نہیں تو کل تم اس کی جال میں آ ہی جاؤ گے۔ تو نے کہا نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آج تم بچا لو گے تو پھر دوبارہ کبھی بھی ہم شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اس انسان نے کہا نہیں، میں ایسے تمہیں آزاد نہیں کراؤں گا، پہلے میں جو کچھ کہوں گا اسے دہراتے رہو۔ جو ہے اس نے کہنا شروع کیا، کہا کہ یہ دوہراؤ، جب کبھی ہم جنگل میں آئیں گے دانا چگیں گے، شکاری ہمارے شکار کے لیے دانے کو ڈالے گا، ہم دانے کی لالچ میں نہیں آئیں گے، شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھا، اس نے کہا دوبارہ پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھو، چوتھی مرتبہ، کئی مرتبہ اسی چیز کو جو ہے دہرایا کہ جب ہم جنگل میں آئیں گے دانا چگیں گے، شکاری ہمارے شکار کے لیے آئے گا، ہم شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ نہیں پھنسیں گے تو اس نے ان سارے پرندوں کو شکاری کے جال سے آزاد کر دیا اور وہ اڑ کے چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد دوبارہ یہ جنگل میں ٹہلنے کے لیے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے، وہی شکاری ہے، وہی جال ہے، وہی پرندے ہیں اور اسی جال میں وہی پرندے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آ کے کہتا تھا میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا
तुम्हें बचाने का कोई फायदा नहीं है, तुम दोबारा आओगे जाल में फंसोगे। फिर शहीद मुताहरी हमारे लिए जो है मॉरल लेसन देते हैं, कहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम हर साल आता है, हर साल हम आजादारी में आकर शिरकत करते हैं, हर साल खतीब हमारे लिए नई नई चीजें बयान करता है। यहाँ हम इरादा करके भी उठते हैं कि हम वो काम जो करते थे अब नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा माहिर जो है मुहर्रम आता है तो फिर हमारा वही हाल है, फिर वही इरादे होते हैं कि अब नहीं करेंगे। लिहाजा हमें तोतों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा इरादा मुहकम होना चाहिए। यहाँ आके बैठे पूरी चीजें सही ना हो सकता है कि पूरे माह मुहर्रम हराम में हम अपनी एक गलत चीज को सुधार लें, तो तब भी जनाब ज़ैनब का मकसद कामयाब हो जाएगा। ये फर्श आजाद सिर्फ बैठकर थोड़ी देर सुनकर जाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को बदलने के लिए। मैंने कल की मजलिस में भी शायद इशारा किया था, ये फर्श अज़ा में वो ताकत है कि यहाँ गुनहगार भी आता है तो वो यहाँ से हुर बनकर वापस जाता है। और इसी मकसद के लिए शहजादी जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इतनी मुसीबतों के बाद इस फर्श अज़ा को बिछाया। और हम बार बार कहते हैं कि अगर ये आजादारी बाकी है तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वजह से बाकी है। देखिए कैसे बाकी है, मैं उसे समझाने के लिए मैं फिर एक छोटी सी मिसाल का सहारा लूंगा, फिर इंशाल्लाह अपनी असासी गुफ्तगू की तरफ वापस आने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ अमेरिका में बैठकर टीवी देख रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान का या दूसरे मुल्क का एक रिपोर्टर वहां का चैनल चल रहा है, आप यहाँ घर में बैठकर चैनल देख रहे हैं। ठीक है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सामने टीवी है, टीवी के स्क्रीन पर एक रिपोर्टर है जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि आप जो ये लाश देख रहे हैं, जो मेरे सामने लाश पड़ी हुई है, ये गुंडे की लाश है, एक बदमाश की लाश है, ये किसी शरीफ घर के अंदर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था और उसने चोरी करनी चाहिए, यहाँ तक के घर वालों को नुकसान पहुंचाना चाहा, तो घर वाले ने अपनी बीवी बच्चों की जान की हिफाजत के लिए इसे मार गिराया। तो आप यहाँ बैठकर क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा हुआ ऐसा इंसान मारा गया, और जिसने अपनी बीवी बच्ची के जो है दिफा के लिए उस पर हमला किया है उसकी आप तारीफ करेंगे। नहीं, आप थोड़ा सा दूसरे हिसाब से देखिए इसी चीज को, यही टीवी स्क्रीन है, रिपोर्टर भी वही है और जो वक्त भी वही है, आप यहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन रिपोर्टर अब थोड़ा अलग रिपोर्टिंग जो है कर रहा है। अब क्या करें, लाश भी वही है, ये जो लाश आप देख रहे हैं बड़े मजलूम इंसान की लाश है। ये बेचारा रिस्क हलाल की तलाश में घर से निकला था, रास्ते में कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया और इसे मार दिया। तो पहले वाले सीन में आप कातिल की तारीफ कर रहे थे, ठीक है, और मकतूल को लानत जो है भेज रहे थे। दूसरे वाले सीन में आप क्या कर रहे हैं, मकतूल की तारीफ कर रहे हैं और कातिल की लानत कर रहे हैं। अब वाकई करबला में यही तैयारी हुई थी, यजीद ने पूरी तैयारी कर ली थी कि मैं करबला के सहरा में हुसैन को शहीद करूंगा और मीडिया ये करूंगा कि हुसैन बागी थे। ये तो एहसान मानिए जनाबे ज़ैनब का कि जिन्होंने अपनी चादर गवा के करबला की सही रिपोर्टिंग हम तक पहुंचाई। अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सही रिपोर्टिंग ना करती तो फिर वो करबला जो आज हमारे दरमियान है वो हमारे दरमियान बाकी ना है। अच्छा, अगर जनाब ज़ैनब के जिंदगी को हम किताबों में ढूंढे, क्योंकि जनाब ज़ैनब बहुत फेमस नाम है, अगर किताबों में ढूंढे कि जनाब ज़ैनब की जिंदगी कैसी थी, तो मैं आज आपको ये बता दूं, किताबों में जनाब ज़ैनब की जिंदगी के हवाले से ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। ये किताब मरहूम आयतुल्लाह क़ज़वीनी ने लिखी, किताब का नाम रखा ज़ैनबुल कुबरा मिनल महदी इलल लहद, जनाब ज़ैनब की जिंदगी गहवारे से बहुत मोटी किताब। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो सारी किताब में मदीने से वापस मदीने के हालात है, बहुत मुख्तसर आपके बचपने के हालात जो कमोपेश हमने सबने सुना है कि आपकी विलादत कैसे हुई, आपको जो ये ख्वाब आपने देखा था बाबा से उसकी तफसीर पूछी, बहुत मुख्तसर मालूमात, और वापसी के बाद के हालात भी बहुत मुख्तसर हमें किताबों में मिलते हैं। या एक दूसरी किताब आयतुल्लाह मरहूम दस्तगीर ने लिखी, किताब का नाम रखा जिंदगानी हजरत कुबरा, हजरत ज़ैनब कुबरा। उस किताब में भी ज्यादा मालूमात है, वही आपके मदीने से मदीने तक का सफर जो है बयान है। या दूसरी किताब है, किताब का नाम है
जिसे मरहूम फैज काशी जो है काशानी ने तहरीर फरमाया। किताब का नाम है खातून दूसरा। आप जाके इस किताब को पढ़ लीजिए। जनाब ज़ैनब के जो हालात मिलते हैं, वो मदीने से निकलती है, वहां से तस्करा शुरू होता है और मदीना वापस पहुंच जाती है, वहां पर आपका तस्करा तमाम होता है। और जो चीजें करबला से पहले और करबला के बाद है, उसमें इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ। यहाँ तक कि शहजादी की तारीख विलादत को लेकर भी इख्तिलाफ है, शहजादी की तारीख शहादत को लेकर भी इख्तिलाफ है, 2-3 तारीखें बयान हैं। यहाँ तक कि शहजादी कहाँ दफन है, इस चीज को भी लेकर तारीख में इख्तिलाफ पाया जाता है। बास जो मौरखीन ने कहा शहजादी वही मदीने ही में दफन है। कुछ मौरखीन ने तहरीर फरमाया कि शहजादी मिस्र में दफन है, और कुछ जो है मौरखीन ने तहरीर फरमाया, जो कि मशहूर कौल है, कि शहजादी शाम में दफन है। शहजादी के तारीख विलादत में भी इख्तिलाफ, शहजादी के तारीख शहादत में भी इख्तिलाफ, शहजादी के महल्ले दफन में भी इख्तिलाफ। और बाज़ उलमा ये कहते हैं जो इख्तिलाफ पाया जाता है, ये जनाब ज़ैनब की फजीलत को उजागर करता है। क्यों जनाब ज़ैनब की तारीफ जो है मख्फी है। मिसाल के तौर पर मौलाए कायनात के पड़ोस में एक यहूदी रहा करता था। एक दिन मौलाए कायनात को उनके एक साहबी ये कहकर खिताब करते, या अबू ज़ैनब। तो ये यहूदी परेशान हो जाता है कि तुम आज अली को ये अबू ज़ैनब कह के क्यों पुकार रहे थे, वो तो अबुल हसन है। तो सामने वाले ने बताया क्या तुमको पता नहीं कि अली की एक बेटी भी है कि जिसका नाम ज़ैनब है। यहूदी ताजुब करता है और कहता है कि मैं कई सालों से अली के पड़ोस में रहता हूं, मुझे ये तक खबर नहीं है कि अली के घर में बेटी भी है। यानी जनाबे ज़ैनब की परवरिश इतने इस्मती माहौल में हुई थी कि आपकी मालूमात तारीख में नहीं मिलेंगे हमको, और मिलने भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए शहजादी जनाब ज़ैनब के बारे में जो कुछ लिखा गया है, वो मदीने से मदीने तक के हालात को तहरीर किया गया। अब शहजादी जनाब ज़ैनब की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है, तो क्या हम शहजादी की मारिफत हासिल नहीं कर सकते? मैं कहूँगा जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ मुख्तसर लिखा गया है, वही शहजादी के मारिफत को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा। इन मुख्तसर मालूमात से हम शहजादी की अज़मत का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। आज चूंकि शहजादी जनाबे ज़ैनब के बच्चों से मंसूब दिन है और हमारा मौजूद गुफ्तगू भी जनाबे ज़ैनब और कुर्ब इलाही है, तो मैं चाहता हूँ कि आज रसूल इस्लाम के एक हदीस के जरिए से जनाबे ज़ैनब के कुर्ब को पहचानने की कोशिश करें। रसूल इस्लाम से हदीस है कि जब मैं शबे मेराज पर गया था, तो खुदावंद आलम ने मुझे बहुत सारी चीजों की तालीम दी। बहुत सारी चीजें मैं लेकर जमीन पर वापस आया। जहां खुदावंद आलम ने शबे मेराज मुझे बहुत सारी चीजें बताई, उन्हीं चीजों में से एक चीज ये भी बताई कि ए मोहम्मद, अगर किसी बंदे के अंदर ये 3 सिफात पाए जाएं, तो मैं उसका शुमार सिद्दीकीन में करूं। अब ये मकाम सिद्दीकीन क्या है? देखिए, बहश के 4 दर्जे, 4 फ्लोर है। पहला जो दर्जा है वो नबीईन का दर्जा है। नबीईन के बाद सिद्दीकीन का दर्जा है। सिद्दीका, जैसे कुरान मजीद में हजरत मरियम को सिद्दीका कहकर खिताब किया गया है। यानी ये दूसरा जो है दर्जा है, जो बहश करूंगा मौला कायनात का दर्जा है, हमारे अइम्मा का दर्जा है। ये दर्जा किसका दर्जा है? सिद्दीकीन का दर्जा। सिद्दीकीन के बाद है शहदा, शहदा का दर्जा। शहदा के बाद है जो है सालिहीन का दर्जा। तो रसूल इस्लाम ने कहा शबे मेराज अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, अगर किसी बंदे में जो 3 क्वालिटीज मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये 3 क्वालिटीज पाई जाएंगी, तो उसका शुमार हम किसमें करेंगे? सिद्दीकीन में करेंगे। पहली क्वालिटी क्या है? कहा अर्रिदा हो बेरिदल्लाह। अगर किसी बंदे के अंदर ये क्वालिटी आ जाए कि वो अल्लाह की रिजायत में राजी होना सीख ले, तो फिर मैं उसका शुमार सिद्दीकीन में करूंगा। नहीं, मैं एक मिसाल का सहारा लेता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, और उन्हीं चीजों में शक्कर और नमक तो हर घर में होता है। शक्कर भी होता है, नमक भी होता है। अच्छा, शक्कर अलग है तो उसका इस्तेमाल है, नमक अलग है तो उसका भी अपना इस्तेमाल है। किसी दिन आप शक्कर और नमक को एक ही डब्बे में मिक्स जो है कर दें, तो ना शक्कर काम की रहेगी, ना
नमक काम का रह जाए। इसीलिए उलमाए अखलाक कहते हैं कि रिदायत खुदा का मरहला वो मरहला है कि जिस तरह से एक डब्बे में दो मुतजाद चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ही जगह पर शक्कर और नमक जमा नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह से रिदायत और गिलामंदी एक जगह जमा नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा एक क्लेम करे कि मैं अल्लाह की रिजा के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करता हूं, और जब सख्त हालात में गिरफ्तार हो जाए तो अपने जबान से शिकवा और अपने जबान से गिले को निकाले। नहीं, मैं बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए एक और दास्तान का सहारा लेता हूं। ये मनकूल है कि किसी जगह पर एक जवान रहा करता था और उसकी एक माशूका थी। जवान था, किसी लड़की को पसंद करता था और हर दिन उसके मुलाकात के लिए जाता। जब तक उसका दीदार नहीं हो जाता उसे करार नहीं मिलता। तो मुलाकात करने के लिए एक दिन जो है अपने माशूका के घर गया। हस्ब मामूल उसने दस्तुल बाप किया, नॉक किया। जो अंदर से इसकी माशूका ने पूछा कौन, पूछते हैं ना अगर कोई दस्तुल बाप करता है कौन, पूछा कौन, तो इसने बाहर से जवाब दिया मैं तुम्हारा आशिक हूं मैं। तो माशूका ने अंदर से आवाज दिया यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। अब एक आशिक से उसकी माशूका अचानक से कह दे, कोई बात तो हुई नहीं है कि मुलाकात के लिए आया है, अचानक से कह दे कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, तो आदमी परेशान हो जाएगा, सोचने लगेगा मुझसे क्या गलती हो गई भाई। बगैर बात के कोई वजह होती है तब नाराजगी होती, बगैर बात के अगर कोई कह दे मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, परेशान हो गया। सोचते सोचते रास्ते से गुजर रहा था, रास्ता भर सोच रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी बिना पर मेरी माशूका ने मुझे आज कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। रास्ते में एक बुजुर्ग ने देखा कि एक नौजवान परेशान है, जाकर इससे पूछता है कि अरे जवान, आज परेशान नजर आ रहे हो, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। तो ये कहता है कोई खास वजह नहीं है, आज माशूका की मुलाकात के लिए गया था, दखुल बात किया। उसने अंदर से पूछा कौन, मैंने जवाब दिया मैं। जैसे ही मेरे जवाब को सुना मेरी माशूका ने ये जवाब दिया कि मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो बुजुर्ग ने कहा बिल्कुल सही किया उसने, अगर मैं होता तो मैं भी यही कहता कि यहाँ से दफा हो जाओ। जवान हाथों को जोड़ता है, पूछता है मैं अभी नहीं समझा, मैंने कौन सा गलत काम कर दिया। बुजुर्ग कहता है ऐ जवान, आशिकी का दावा भी करते हो और जबान से मैं भी निकालते हो। जहां इश्क होता है वहां मैं नहीं होता है, सिर्फ माशूक की मर्जी होती है। अब समझ में आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में बड़े से बड़े मसाइब पढ़ने के बाद भी जबान से एक ही जुमला निकाल रहे, रिदन बिक़दाइका व तस्लीमन लिअम्रिक। यानी हाथ में छोटे बच्चे की लाश है, इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि हर मरहले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यही ऐलान कर रहे हैं कि रिदन बिक़दाइका व तस्लीमन लिअम्रिक। और इसी नक्शे कदम पर चलते हुए आप जनाबे ज़ैनब की जिंदगी को देख लीजिए। थोड़े से मसाइब हमारे जिंदगी में आ जाते हैं तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। जनाबे ज़ैनब के सामने इतने सख्त हालात हैं कि एक ही दिन में भाई भी जुदा हो गए, भतीजे भी जुदा हो गए और अपने बेटे भी जुदा हो गए, एक ही दिन में खियाम जला दिए गए, सर से चादर छीन ली गई। ये सारे मुश्किलात के बाद भी रिजायत परवरदिगार जनाबे ज़ैनब की जिंदगी में इस बुलंदी पर है। जालिम जनाबे ज़ैनब से पूछता है कई फराई किस्म अल्लाह बिअखीकिल हुसैन, ऐ ज़ैनब जरा बताओ करबला में जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे भाई के साथ किया उसको तुम कैसे देख रही हो। तो जनाबे ज़ैनब ने एक ही जवाब दिया, उम्मा राइतु इल्ला जमीला। तुम अपने नजरिए से देखकर कह रहे हो कि करबला में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। जनाबे ज़ैनब ने ये ऐलान किया, ज़ैनब रिजायत परवरदिगार पर रिजा जाहिर करती है। तू देख रहा है कि करबला में मेरे भाई के शाने कट गए, लेकिन ज़ैनब की निगाहें देख रही है कि शाने नहीं कटे हैं, बल्कि एक भाई ने दूसरे भाई के साथ वफा की है। तू अपने नजर में ये देख रहा है कि तूने हमारी चादरों को छीनकर हमें जलील कर दिया है। ज़ैनब की मानवी निगाहें ये देख रही है, ज़ैनब ने ये चादर जो अपनी लुटाई है भाई के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएगी। मुस्तकबिल में पता चलेगा, मेरे चादर का नतीजा ये होगा दुनिया के हर गोशे से या हुसैन की सदाएं बुलंद।
अल्लाह ने क्या कहा, ए मोहम्मद अगर मेरे बंदों में ये क्वालिटी आ जाए कि वो अल्लाह की रिजा पर राजी हो जाए तो मैं उनका शुमार सिद्दीकीन में करूंगा। और जब इंसान की जिंदगी में रिजाए खुदा वारिद हो जाती है तो हर मरहले में इंसान मुतमईन नजर आता है। इंसान पर जैसी जैसी मुसीबतें पड़ती हैं उसका इत्मीनान और बढ़ता जाता है। आम हालात में क्या होता है, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाते हैं हमारा टेंशन बढ़ता जाता है। लेकिन अगर रिजायत खुदा आंखों के सामने हो तो जैसे जैसे मुसीबतें हमारे सामने आएंगी जो है हमें आराम मिलेगा। और इसीलिए तारीख में जब्त है कि रोज़े आशुरा तारीख में जब्त है। या एक शख्स ये बयान करता है कि मैंने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन के भूखे प्यासे, इमाम तन्हा है, सब शहीद हो चुके हैं, आखिरी वक्त है और हालात ऐसे हैं कि इमाम नीचे हैं और शुम्र अपने हाथों में कुंद खंजर लेकर इमाम के सीने पर सवार है और इमाम अपनी जबान को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये शख्स कहता, मैंने सोचा कि मैं किसी तरह से कोशिश करके कुछ पानी हुसैन तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि हुसैन बहुत ज्यादा प्यासे हैं जो है और ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, अगर हो सके तो मैं कुछ पानी के खतरे ले जाकर हुसैन तक पहुंचा। अब इस शख्स कहता, मैं पानी लेने के लिए गया, मैं पानी लेके जब वापस पलटा तो मैंने देखा कि शुम्र के हाथ में इमाम का सर है। और जब मैंने इमाम के सर को देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया, चूंकि जितना हुसैन का चेहरा शहादत के बाद चमक रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था हुसैन जिंदा है या शहीद हो चुके हैं। यह हालत कब आती है, जब इंसान रिजाए खुदा रिजायत परवरदिगार के तहत अपनी जिंदगी बसर करता है। और जनाबे ज़ैनब का एक लक़ब है राजिया, आपने सुना है। राजिया मतलब क्या, जनाबे ज़ैनब एक ऐसी खातून थी जो खुदा के मर्जी के तहत अपनी जिंदगी बसर करे। तो पहली क्वालिटी क्या है, अगर चाहते हो कि तुम्हारा शुमार सिद्दीकीन में हो जाए तो क्या करना चाहिए, अर्रिदा बेरिदा अल्लाह, अल्लाह की जो कुछ मर्जी होगी उस मर्जी पर हम अपनी रिसायत का ऐलान करेंगे। दूसरा, अस्सब्रो अला बलाइल्लाह, ऐ मोहम्मद मैं ऐसे इंसान का शुमार सिद्दीकीन में करूंगा जो अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाले इम्तिहानात पर सब्र से काम ले। अब देखिए जनाबे ज़ैनब जो मदीने से निकली है वापस मदीने तक आपकी जिंदगी में सिर्फ जो है सब्र ही सब्र मिलेगा। और इसीलिए शहजादी का एक लक़ब साबिरा है, कहा जाता है कि आप क्या थी, साबिरा। शहजादी ने हर मरहले में सब्र से काम किया, भाई कुर्बान हो गए सब्र। हाँ, एक मरहला हमें मिलता है, 9 मुहर्रम की तारीख थी और असर का वक्त था। मेरा मौला खैमे में आराम फरमा रहा था, जनाबे ज़ैनब अचानक से मौला के खैमे में पहुंचती है और ये कहती है कि भाई बाहर शोर गुल की आवाजें बुलंद है, क्या आज ही जंग होगी। तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन से ये फरमाया, नहीं बहन ज़ैनब, अभी मैं कुछ देर के लिए लेटा था, मेरी आंख लगी थी तो मैंने ख्वाब में अपने नाना को देखा। नाना ने अभी मुझे ख्वाब में बताया कि ऐ बेटा हुसैन, कल वो दिन होगा कि तुम हमसे मुलाकात करने के लिए आओ। अब जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने सुना कि भाई का साथ सिर्फ एक दिन का है तो ज़ैनब के आंख से आंसू निकलते हैं और जनाबे ज़ैनब वहीं खैमे के अंदर गश खाकर बेहोश हो जाती है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पानी तो है नहीं कहीं को बेदार करने के लिए। अब मुझे पता नहीं शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंसुओं से बेदार किया या किस तरह से बेदार किया। वो वक्त भी आया कि जनाबे ज़ैनब गश से बेदार होती हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन को बिठाकर कुछ इमामत के असरार और रूस अपनी बहन के हवाले करते हैं। कहते हैं कि बहन ज़ैनब, मेरी शहादत वाक़ई हो जाएगी, मैं तुम्हारे हवाले कुछ असरार इमामत कर रहा हूँ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम्हें मेरे बाद सब्र से काम लेना है, बड़े हौसले से काम लेना है, चूंकि आपके कंधे पर 2 अजीम जिम्मेदारियां हैं बहन ज़ैनब। आपको मेरी नस्ल को भी बचाना है, आपको मेरे मकसद को भी बचाना है। बस भाई ने एक मर्तबा असरार इमामत ज़ैनब के हवाले कर दिए और ज़ैनब को ये वसीयत कर दी कि बहन ज़ैनब सब्र से काम लेना। फिर उसके बाद झूठी सी झूठी तारीख ने भी ये तहरीर नहीं किया कि जनाब ज़ैनब ने सब्र के दामन को छोड़ दिया।
जनाब ज़ैनब इतनी बड़ी साबिरा है और रसूल इस्लाम ने कहा अगर कोई अल्लाह की जानिब से नाजिल होने वाली मुसीबतों पर सब्र करेगा तो मैं उसका शुमार किसमें करूंगा, सिद्दीकीन में करूंगा। और शहजादी जनाब ज़ैनब का लक़ब राज़िया भी है, शहजादी जनाब ज़ैनब का लक़ब साबिरा भी है। और तीसरी और आखिरी क्वालिटी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शब मेराज रसूल के हवाले की, अश्शुक्र अला निअमातिल्लाह। अगर अल्लाह की जानब से कोई नेमत आपको मिलती है तो आपका फरीजा ये बनता है कि जो नेमत मिली है उसके मुकाबले में आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे वो शाकिर। जनाबे ज़ैनब की जिंदगी देखिए, जनाबे ज़ैनब ने न सिर्फ नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है बल्कि मुसीबतों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे जनाब ज़ैनब ने मुसीबतों का कब शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाता है, प्रैक्टिकल तरीके से ना, अल्लाह ने हमें पैदा किया उसकी इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। और चौथे इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं, अम्मती कानत तुसल्ली मिनल जुलूस, मैंने शामे गरीबान देखा कि जब हमारे ख़ैमे जल चुके थे, चादरें छिप चुकी थी, उसके बावजूद भी मेरी बीबी ज़ैनब जले हुए खैमों की राख पर बैठकर नमाज शब को अदा कर रही थी। जनाबे ज़ैनब इतनी बड़ी शागिरा, जनाबे ज़ैनब राज़िया भी हैं, जनाबे ज़ैनब साबिरा भी हैं, जनाबे ज़ैनब शाकिरा भी हैं। तो मुझे कहने दीजिए जनाबे ज़ैनब का वही मकाम है जो हजरत मरियम का जन्नत में मकाम है। शहजादी जनाबे मरियम भी सिद्दीक़ा है और शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी सिद्दीकीन के जुमरे में दाखिल होती है। क्योंकि शहजादी जनाब ज़ैनब ने हर मरहले में रिजायत का इजहार किया, सब्र का इजहार किया और शुक्र का इजहार किया है। तारीख तहरीर फरमाती है, भाई ने वसीयत की थी ना 9 मुहर्रम को, बहन ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, आपको सब्र से काम लेना है, आपको नस्ल इमाम भी बचाना है, आपको भाई के मकसद को भी बचाना है। तारीख में एक चीज दर्ज है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो फौजे अशकिया खुशियां मना रही, कोई ढोल बजा रहा था, कोई ताशा बजा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई तालियां मार रहा था, जोर जोर से आवाजें बुलंद थी। जैसे होता है ना, सामने वाला अगर जीत जाए या हार जाए तो हमारे जो है सन्नाटा रहता है, लेकिन सामने वाला जो ये सोचता है कि मैं जीत गया हूँ खुशियां मनाता है। अब यजीदी ये सोच रहे थे कि हम हुसैन को शहीद करके हम जीत गए। अब यजीदी फौज खुशियां मना रही थी, जिस मकसद के लिए आए थे टारगेट पूरा हो गया, काम पूरा हो गया, अब वो खुशियां मना रहे थे। जनाबे ज़ैनब के कानों में जब उनके ढोल बजाने की, ताशे बजाने की, तालियों की, जोर जोर से हंसने की आवाज आई तो जनाबे ज़ैनब ने फिजा से कहा कि ऐ अम्मा फिजा, जरा मुझे माँ की चादर दे। जनाबे ज़ैनब चादर को अपने सर पर रखती है असरे आशूर और खैमे से बाहर निकल आती है। अब जनाबे ज़ैनब जैसे खैमे से बाहर निकल आती है तो फौजे अशकिया खुद ब खुद रास्ता देते हुए चले जाते, यहाँ तक कि जनाबे ज़ैनब भाई के लाश तक पहुंचना चाहती है, लेकिन ज़ैनब को भाई की लाश नजर नहीं आ रही। जनाबे ज़ैनब ने देखा नशेब तो यही है, लाश क्यों नजर नहीं आ रही है। तो जनाबे ज़ैनब ने देखा लाश तो नहीं है लेकिन पत्थरों का एक ढेर है। मैं भी मसाइब की तरफ नहीं आ रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि जनाबे ज़ैनब के मसाइब में से फजाइल। जनाबे ज़ैनब ने देखा पत्थरों का ढेर है, अगर हम और आप होते तो क्या करते, रिजायत परवरदिगार भी चली जाती, सब्र का दामन भी छूट जाता, शुक्र के बजाय जो है बजाय गिला और शिकवा जबान से निकल आता। लेकिन जनाबे ज़ैनब ने जैसे ही देखा कि भाई का लाशा पत्थरों में छुपा हुआ है, जनाबे ज़ैनब बैठ जाती हैं और अपने हाथों से एक एक पत्थर को अलग करती हैं, यहाँ तक के भाई के लाशे को देखती है। क्या देखती है कि फिर भी भाई का लाशा पूरा नजर नहीं आ रहा है, भाई के लाशे पर सर नहीं है और बदन की कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिस पर तीर ना लगा हुआ। जनाबे ज़ैनब ने अपने दोनों हाथों को तीरों पर रखा, फिर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, परवरदिगारा तो हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। यहीं पर रुककर मैं एक जो है खिताबती नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह आशूर से जब भी किसी शहीद का लाशा लाते तो यही दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान, या
مجھے آپ یہ کہنے دیجئے کہ جو تمام شہدائے کربلا کی قربانی کو قبول فرمائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی قربانی کو قبول ہونے کے لیے دعا کرے اسے زینب اولیا مقام کہتے ہیں۔ جناب زینب نے کیا دعا کی؟ پروردگارا تقبل منا ھذا القربان، ہم نے قربانی تو دے دی، ہمارا کام ہے قربانی دینا، لیکن ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ زینب یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے بھائی کی قربانی دے دی تو قبول ہو گئی، نہیں جناب زینب حسین جیسی قربانی دینے کے بعد بھی دعا یہ کر رہی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یعنی شہزادی یہ پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو عمل کرنا کافی نہیں ہے بلکہ امپورٹنٹ عمل کا قبول ہونا ہے۔ جب زینب حسین جیسی قربانی دینے کے بعد بھی اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہی ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے چھوٹے موٹے عمل، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں سوچتے ہیں میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا، میں نے اتنی مجلسوں میں شرکت کی، میں نے اس لیے جو ہے اتنی نمازیں پڑھ لی، ہم کرتے زیادہ ہیں۔ مولا کائنات سے بھی جو ہے منسوب ہے، کسی نے مولا کائنات سے کہا کہ اے علی آپ جو ہے کتنی چیریٹی کرتے ہیں، اب تو بس کیجئے، دن رات آپ کا کام یہی ہے کہ آپ سخاوت کرتے جاتے ہیں۔ تو مولا کائنات نے پوچھنے والے سے کہا تھا ٹھیک ہے میں سخاوت نہیں کروں گا تو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ میں نے جو اب تک چیریٹی کی ہے کہ وہ چیریٹی میں سے کوئی ایک چیریٹی بھی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی ہو۔ یہ آیت اللہ بروجردی کے بارے میں بھی لکھا تھا، گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے بات بات آیت اللہ بروجردی کا آخری وقت تھا، وہ کہہ رہے تھے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ شاگردوں نے کہا آقا آپ شاید بھول گئے کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور جو ہے ابھی حالت خراب ہے، شاید بھول گئے آپ نے حوض علمیہ کو بنایا، آپ زمانے کے مرجع ہیں، آپ نے توضیح المسائل لکھی، آپ نے یوروپ جیسے ملکوں میں بھی حسینیہ سینٹرز بنائے، آپ نے بہت یتیم خانے کھولے، آپ نے بہت جب گنا رہے تھے آیت اللہ بروجردی نے کہا خاموش، مجھے معلوم ہے سب میں نے کیا، میں بھول نہیں گیا ہوں، میں نے کیا تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک کون سا عمل قبول ہوا یہ مجھے پتا نہیں۔ کبھی کبھی بڑی چیزیں ہم انجام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور کبھی کبھی چھوٹا چھوٹا ایکشن جو کسی کی نظروں میں بھی نہیں آتا ہو سکتا ہے وہی ہمارے نجات کا ضامن بن جائے۔ بات کو پہنچانے کے لیے ربط مسائل سے پہلے دامن گنجائش نے صرف ایک داستان انشاءاللہ پھر آج کی مجلس تمام۔ آپ سب لوگ مفاتیح الجنان کو جانتے ہیں نا؟ مفاتیح الجنان یہاں بھی رکھیں، یہ مفاتیح الجنان کے رائٹر کون ہے؟ شیخ عباس قمی۔ شیخ عباس قمی کے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا شیخ عباس نوری۔ شیخ عباس نوری نے اپنی زندگی میں کتاب لکھی، کتاب کا نام دارالسلام، میں نے وہ کتاب نہیں دیکھی، لیکن شیخ عباس قمی اپنی ایک کتاب منازل الاخرہ میں کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے اس چیز کو اپنی کتاب دارالسلام میں تحریر فرمایا، اور وہ کہتے ہیں دارالسلام کا کانٹینٹ یہ ہے کتاب کا کہ شیخ عباس نوری جب زندہ تھے، عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، خواب میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے جو اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے خواب میں آتے تھے اور وہاں کے حالات ان کو بیان کرتے تھے کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سارے خوابوں کو جمع کیا اور جو ہے کتاب میں تحریر کیا اور کتاب کا نام رکھا دارالسلام۔ اب شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ان کے ایک دوست رہا کرتے تھے کہ جن کا نام مرزا خلیل تہرانی، تہران کے رہنے والے تھے، نام ان کا مرزا خلیل۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زندہ تھے تو ہم نے طے کیا تھا کہ اے خلیل تہرانی اگر تم پہلے اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہاں کے حالات مجھے بتانا، اگر میں پہلے چلا جاؤں گا تو میں تمہیں حالات بتاؤں گا۔ اب شیخ عباس نوری اپنی کتاب دارالسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں اپنے دوست مرزا خلیل تہرانی کو دیکھا اور میں نے اس حالت میں دیکھا کہ ایک بہت بڑے محل کے اندر وہ آرام کرتے ہوئے تشریف فرما۔ تو میں نے پوچھا مرزا خلیل تہرانی تمہیں مبارک ہو، تمہاری آخرت کامیاب ہو گئی، وہاں تو بڑے بڑے محل ملے ہیں تم کو، تم نے جو دنیا میں درس حاصل کیا تھا، تم نے جو دین کی تبلیغ کی تھی، تم نے جو لوگوں کی مدد کی تھی، تم نے جو لوگوں کو پڑھایا تھا، تم نے جو کتابیں لکھی تھی، ہو سکتا ہے خدا نے سب کو ملا کر تمہیں یہ اجر دے دیا کہ تمہیں جنت میں محلات عطا کیے ہیں۔ مرزا خلیل تہرانی کہتے ہیں نہیں، مجھے جو محل ملے ہیں نہ میرے مولانا بننے کی وجہ سے، نہ تبلیغ کی وجہ سے، نہ تدریس کی
वजह से, ना किताबों की वजह से है, किसी चीज की वजह से नहीं, बल्कि मैंने जिंदगी में अनजाने तौर पर एक छोटा अमल अंजाम दिया था, उस अमल के बदले में खुदावंद आलम ने मेरी आखिरत को आबाद कर दिया। वो दास्तान सुनाते, पूछा गया कौन सी चीज जिसकी वजह से तुम्हारी आखिरत आबाद हो गई, बहिश्त में तुम्हें महल दिए गए। तो अब ये मिर्जा खलील तेहरानी अपने दोस्त को दास्तान बताते हैं। जो लोग जियारत हजरत मासूमा के लिए गए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जो हरम से लगा हुआ ये जो है मदरसा है, जिसका नाम जो है दारुशिफा क्लिनिक भी है, उसके सामने लिखा हुआ मदरसा दारुशिफा। तो ये कहते हैं मैं दारुशिफा में तालीम हासिल कर रहा था पुराने जमाने में, मैं तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन हालत ये थी कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और मेरे पास चूंकि सर्दी का मौसम था, हीटर में तेल डालने के लिए तेल के भी पैसे थे। पहले जमाने में तेल की बुखारियां होती थी जिससे गर्म किया जाता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, 2-3 दिन गुजर गए। मैंने तलाश और कोशिश की कि किसी तरह से कुछ पैसे का इंतजाम हो जाए, क्योंकि तुल्लाब की जिंदगी जो होती है काफी सख्त जिंदगी हम भी गुजार के आए हैं। हर जमाने में जमाने के एतबार से जो सबसे मुश्किल जिंदगी होती है वो तालिब इल्म की जिंदगी, क्योंकि खुदा के लिए जिंदगी का। मेरे पास पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे का इंतजाम हुआ। मैंने सोचा इतने दिन के बाद मुझे पैसा मिला है तो मैं कुछ पैसे से तेल खरीद लेता हूँ और कुछ पैसे से खाना खरीद लेता हूँ। मैं इस नीयत के साथ मदरसे के बाहर निकला। मैंने क्या देखा कि मदरसे के बाहर एक खातून है जो अपने 2 यतीमों को लेकर बैठी। मैंने उस खातून से कहा सर्दी का मौसम है, तुम घर चले जाओ, बच्चे बीमार हो जाएंगे। उस खातून ने कहा कि घर हो तो मैं जाऊं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। किसी ने कहा था तुम चले जाना, तुम्हारे बच्चों की मदद हो जाएगी। इनसे देखा ना गया, मैं जल्दी जल्दी बयान करूँ दामन उसमें बिल्कुल गुंजाइश है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं उस मोहतरमा को और उसके बच्चों को एक मुसाफिर खाने ले गया, और मैंने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, 3-4 दिन से नहीं खाया है, ठीक है। मैं ये पैसा उसके मुसाफिर खाने के लिए। मुसाफिर खाने वाले ने कहा बिल ज्यादा है, कहा ये अभी रख लो, थोड़े पैसे का खाना ले लेता हूँ इनके लिए, थोड़ा पैसा रख लो, कल सुबह आके मैं दूंगा। अब ये वादा करके वापस मदरसे आ गए। रात भर परेशान थे कि कल सुबह पैसे कैसे आएंगे। सब लोग तो सो गए तालिब, ये चराग जलाकर टहल रहे थे। इतने में एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है कि मैं किसी तालिब इल्म से मिलना चाह रहा था, मैंने देखा तुम्हारे कमरे की लाइट रोशन है, लिहाजा मैं तुमसे मिलने आ गया। कहा किस लिए आए हो? कहा कि मैं तेहरान का बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा अकलौता बेटा है, काफी बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कहा है कि अब दुआ ही बचा सकती है। मैंने सोचा दुआ कराने के लिए मदरसे से अच्छी कौन सी जगह हो सकती है, लिहाजा आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। अब ये कहते मैं बड़ा मौलाना तो था नहीं, तालिब इल्म था, लेकिन उसके खुलूस को देखते हुए मैंने पानी लिया, 40 मरतबा सूरह हम्द को पढ़ा और उसे दे दिया। वो वापस चला गया। अभी सुबह की नमाज का वक्त भी पूरा नहीं हुआ था, वो वापस आता है और कहता है कि खलील तेहरानी तुमने आखिर क्या पढ़ दिया कि जिसके नतीजे में वो मरज जो बड़े बड़े डॉक्टरों से सही नहीं हुआ, मेरा बच्चा पानी पीते ही बिल्कुल सही और सालिम हो गया। मैंने जहां डॉक्टरों के पीछे बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, मैं चाहता हूं कि मुख्तसर तोहफा तुम्हारी खिदमत में पेश करूं। खलील तेहरानी कहते हैं मैंने वो पैसा लिया, बजाय इसके कि मैं अपने लिए इस्तेमाल कर, तो अभी भी मैं भूखा हूं। मैंने सोचा पहले जरूरी ये है कि वो बेवा और उसके जो बच्चे हैं उसके लिए एक घर खरीद दूं। तो पैसा लेकर गया, मैंने खुद में एक घर खरीदा और उस बेवा और यतीमों के रहने का इंतजाम किया है। मेरे दोस्त अब्बास नूरी, ये जो कुछ मुझे बहश्त में मिला है, ये सब कुछ उस एक अमल के बदले में मिला है जो मैंने उस बेवा के लिए अंजाम दिया। बड़े बड़ी चीजें करते हैं, पता नहीं कौन सी चीज कब कबूल हो जाए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये अमल करके खामोश बैठे। हमारा काम है कंटिन्यूअसली अच्छे एक्शन को अंजाम देना, और ये खुदा के ऊपर है कि वो हमारे कौन से अमल को सिलेक्ट करता है। और अगर आप करबला में देखें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, जनाब ज़ैनब ने क्या कहा, कुर्बानी देने के बाद भी क्या दुआ हो रही है, मैंने कुर्बानी दे दी है, लेकिन कबूल करना किसके हाथ में है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। एक तरफ जनाब ज़ैनब ने हमें दर्श दे दिया कि देखो मैं हुसैन जैसी कुर्बानी के बाद भी कबूलियत की दुआ कर रही हूँ, तुम भी आमाल के बाद जरूर अपनी कबूलियत की दुआ करना। और दूसरी तरफ शहजादी ने यजीदियत को एक पैगाम दिया। पैगाम क्या दिया? यजीदी लोग ये सोचकर खुशियां मना रहे थे कि हुसैन मर गए यानी हम जीत गए, हुसैन इस दुनिया से चले गए यानी अब हुसैन के काम को आगे बढ़ाने वाला कोई जिंदा नहीं है। जनाबे ज़ैनब ने अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान कहकर यजीदियों को भी एक मैसेज दिया
तुम सोच रहे हो कि हुसैन मारा गया, मेरा भाई हुसैन मारा नहीं गया है बल्कि कुर्बान हुआ है। और जो राह खुदा में कुर्बान हो जाता है वो मारा नहीं जाता है बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। अब ये कैसे साबित हो? चूंकि करबला में दो दावे हैं। एक यजीदी दावा है जो ये कह रहा है कि हुसैन मारे गए, एक ज़ैनबी दावा है जो ये कह रहा है कि हुसैन मारे नहीं गए हैं बल्कि हुसैन शहीद हुए हैं, और जो शहीद होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। अब हमें कैसे पता चले कि यजीदी दावा सही है या ज़ैनबी दावा सही है? दावे की दलील चाहिए तो मेरे साथ बाजार कूफा आइए। बाजार कूफा में नौके नैजा की बुलंदी से सरे हुसैन ने तिलावत करके बहन की ये दलील पेश की कि देखो दावा ज़ैनब ने किया है, दलील हुसैन पेश कर रहा है। जनाब ज़ैनब ने पैगाम दिया, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना बारइला परवरदिगारा, तू बस हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। यहां तक कि जनाब ज़ैनब के बारे में मिलता है कि जनाब ज़ैनब जब मदीने से निकली थी ना, तभी पता था जनाब ज़ैनब मैं जा रही हूँ, जरूरत पड़े तो मुझे अपना सब कुछ दीन की राह में कुर्बान करना पड़ेगा। इसीलिए तारीख में मिलता है कि 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से निकल रहा था तो रात की तारीखी में कुछ शहजादी जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मजार पर पहुंचती है। जैसे मजार पर पहुंचती है और हालत ये है कि कब्र के दाहिने तरफ जनाब ज़ैनब बैठ जाती हैं और कब्र के बाएं तरफ शहजादी कुलसूम बैठ जाती हैं और कब्र के पायंती जनाब रुकैया बैठ जाती हैं, जो जनाब मुस्लिम की जौजा थी और जनाब ज़ैनब की बहनी थी, क्योंकि वो जनाब उम्मुल बनीन की बेटी थी। वो पायंती बैठ गई। जब ये गुफ्तगू होती है, तारीख ने सब्त किया और तहरीर फरमाया, जनाब ज़ैनब ने कहा कि अम्मा मैं भाई के साथ भाई की नुसरत के लिए जा रही हूँ। अम्मा आप इतना इत्मीनान रखिए, अगर जरूरत पड़े तो ज़ैनब अपने औनो मोहम्मद को भाई के लिए कुर्बान कर देगी। और जनाब रुकैया ने भी कहा कि ऐ अम्मा, ये कनीज भी कुर्बानी के लिए तैयार है और मैंने अपनी कुर्बानी मुस्लिम के जरिए कूफा तक पहुंचा दी है। जनाब ज़ैनब कह रही है कि मैं अपनी कुर्बानी पेश करूंगी। जनाब रुकैया कह रही है कि अम्मा जरूरत पड़े तो मैं भी अपनी कुर्बानी पेश करूंगी। अब ये दो बहनें जब कुर्बानियों का तस्करा कर रही थी तो एक तीसरी बहन भी बैठी हुई थी जिसका नाम कुलसूम था। शायद जनाब कुलसूम के दिल में ख्याल आया हो, अगर खुदा ने मुझे भी औलाद दी हुई होती तो मैं भी औलाद को भाई हुसैन पर कुर्बान करती। लो आजादारो, शब आशूर जब मेरा मौला क़ियाम का कष्ट लगा रहा था तो मौला ने सुना एक तरफ बहन ज़ैनब है जो अपने बच्चों को ये वसीयत कर रही है क्या है औनो मोहम्मद, कल वक्त पड़े तो मामू पर कुर्बान हो जाना। दूसरी तरफ हुसैन की एक दूसरी बहन है जो क़ैमे में ये फरियाद कर रही है, परवरदिगारा कल जब सब अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करेंगी लेकिन कुलसूम के पास कोई कुर्बानी नहीं है। बस इतना सुनना था। गाजी ने कहा है बहन कुलसूम, कल तुम्हारा ये भाई तुम्हारी तरफ से शहीद हो जाएगा। हाँ आजादारो, ज़ैनब ने करबला में हर तरह की कुर्बानी पेश की लेकिन जबान पर कभी शिकवा नहीं लाया। हर मरहले पर हुसैन पर गिरिया करती रही या हुसैन के बच्चों पर गिरिया करती रही। ज़ैनब ने कभी अपने बच्चों का मातम नहीं किया। आया एक मकाम मिलता है जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना वापस पहुंचा, ज़ैनब अपने घर पहुंची, बच्चों के हुजरों में पहुंची, छोटी छोटी जानमाज़ों को देखा, छोटे छोटे लिबास को देखा। ज़ैनब से रहा न गया। ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे बच्चों, माँ को माफ कर देना। अरे भाई हुसैन पर गिरिया करती या तुम्हारी माँ तुम्हारा अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम